Good morning, everyone. So, let us begin our today's class. I hope you all have gone through the video of session number 9, which I have uploaded in the previous class. In that video, we have seen what World Wide Web is, and I told you to solve some of the questions of the assessment and exercise. Those were all MCQs which were supposed to be solved by you. I hope you all have solved, and I expect that if you have some doubts, so you can ask me. All right. मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा. उसके डाउट्स अगर कुछ हो तो आप लोग ज़रूर मुझसे पूछ लें. एक्सरसाइज मैंने करने का आप लोगों को ऑलरेडी बोल दिया था. So in today's class what we are going to start our next session, which is session number 10, that is digital technology and media devices. In this session we will be discussing about what all media devices we have and what all techniques दिस डिजिटल वर्ल्ड नाउ हैज़, है ना, कि क्या क्या मीडिया डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं, कौन से मीडिया डिवाइसेस आज के समय में आ गए हैं और कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं डिजिटल वर्ल्ड की, कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं. इससे रिलेटेड ये हमारा पहला सेशन है. ठीक है, तो आज के समय में हम क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं तो वो सब चीज़ों को थोड़ा सा हम समझते हैं. देखो, लेट मी रीड इट. Today, the function of telephones, cameras, video recorders, media players, and internet devices are being merged into a single portable device. है ना. The table below describes how merging technologies affect some commonly used digital devices and their features. है ना. तो कुछ आज के समय में आप लोग भी जानते हो कि टेलीफोन, कैमरा, वीडियो रिकॉर्ड करना, मीडिया प्लेयर्स जो होते थे, इंटरनेट के जो डिवाइसेस होते हैं, इन सबको मर्ज करके कुछ कॉमन डिवाइसेस आ गए हैं जिन डिवाइसेस में ये सारी फैसिलिटी एक साथ प्रोवाइड कर दी जाती है ना. तो यहाँ पर हमको कुछ लिस्ट दी हुई है. इन दिस लिस्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल दोज डिवाइसेस दैट वर मेड एंड विच हैव बीन मर्ज्ड इनटू सम सिंगल डिवाइस, है ना. तो सबसे पहले देख रहे हैं हम ऑडियो एंड वीडियो प्लेयर्स. आपने सुना होगा MP3 प्लेयर, VCR, CD प्लेयर, इस तरीके के डिवाइसेस जनरली यूज़ होते थे. इवन टुडे दे आर यूज्ड. वी आर नॉट टेलिंग दैट दे आर कम्प्लीटली आउट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी दीज डेज. आज भी यूज़ होते हैं, बट still there are devices, means Bluetooth device, we can say Bluetooth speaker and all those things, they all have replaced this MP3 player and CD player, है ना. So where we see this is the full form of MP3, MPEG audio layer 3. MPEG audio layer 3 means MP3. So at some point of time in the technology there were some devices called MP3 players, CD players, DVD players. These were what? These all were devices that were used to play audio and video, है ना. So they generally used to play songs and they generally used to play some videos, and that was the purpose for which those devices were made. Now the second common device is mobile phones. What are mobile phones? Mobile phones are some wireless devices that provide some capabilities of wired phones, but they are wireless, so we can take it anywhere. Its name is mobile, है ना. नाम ही मोबाइल है उसका, मतलब उसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हो. मोबाइल का मतलब ही वो होता है जो चीज़ इधर से उधर मूव कर सकती है ना. सो मोबाइल फ़ोन है, मतलब वी कैन टेक इट टू एनी लोकेशन, और कहीं भी हम उस मोबाइल से कहीं भी किसी को भी जिसके पास मोबाइल फ़ोन है, कोई एक सेलुलर नेटवर्क का कोई सिम का नंबर है, तो हम लोग उनको कॉल कर सकते हैं. मोबाइल फ़ोन्स में कुछ वेब एनेबल्ड सर्विसेज भी आज के समय में आ गई हैं. मीन्स यू कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट, यू कैन चेक योर ईमेल्स, यू कैन सेंड मैसेजेस, यू कैन डाउनलोड सॉन्ग्स, you can play games and do this thing all over the internet. So this is also a feature that mobile has now been able to support, क्योंकि पुराने समय के जो मोबाइल्स होते थे वो सिर्फ कॉल और SMS सपोर्ट करते थे. फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे चेंज आया है कह सकते हैं, ड्रास्टिक चेंज आया है. सो विद दैट ड्रास्टिक चेंज वी कैन सी दैट all these things have been merged into a single device, है ना. So what all features we have a camera with it, we have some other multimedia features like we can take pictures, we can record short clips, we can play music, we can play games, and we can also transmit these images and videos from one mobile to another using email, है ना. अब तो आजकल तो और भी टेक्निक्स हैं हमारे पास, जैसे कि है ब्लूटूथ, है ना. ब्लूटूथ का यूज़ करके हम सेंड कर सकते हैं.
और उसके सिवा हम वायरलेस तरीके से और भी डेटा सेंड कर सकते हैं। एक वाईफाई डायरेक्ट करके टेक्निक होती है, तो वाईफाई डायरेक्ट का यूज़ करके भी डेटा इधर से उधर ट्रांसफ़र किया जाता है। जो जेंडर और शेयरिड जो डिवाइसेस होते हैं ना, वो जो कनेक्ट करते हैं, तो वो वाईफाई डायरेक्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कनेक्ट करते हैं, जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा सेंड कर सकते हैं। थर्ड मीडिया डिवाइस जिसकी बात करी गई है वो है वीडियो गेम सिस्टम्स। अब वीडियो गेम सिस्टम्स में आप लोगों ने सुना होगा एक एक्सबॉक्स करके एक वीडियो गेमिंग डिवाइस आता है, जिस पे हम गेम्स प्ले कर सकते हैं। सो दोज ऑल वेर ऑल्सो सम मीडिया डिवाइसेस दैट गॉट कॉमन एंड दैट वेर मोस्ट वाइडली यूज्ड, है ना। सो ये भी एक मीडिया डिवाइस था जो कि गेमिंग के लिए यूज़ होता था, ठीक है। इसके साथ साथ ये इनमें एक्सबॉक्सेस में अगर आपने देखा हो तो उनमें कुछ और फीचर्स भी होते थे। मीन्स आप उससे ऑडियो फाइल्स भी ट्रांसफ़र कर सकते थे एक्सबॉक्स में, और कुछ डेटा है तो उसको हम लोग अपनी है एक्सबॉक्स के हार्ड डिस्क में भी डाल सकते थे। तो ये कुछ फीचर्स भी हमको उसमें प्रोवाइडेड थे। एक्सबॉक्स में भी खुद का कुछ स्टोरेज होता है, कुछ मेमोरी कार्ड्स में इनपुट किए जा सकते हैं, जिससे कि कुछ डेटा उसको मिल जाता है, अंडर विच वी कैन स्टोर सम डेटा एंड वी कैन यूज़ इट एज अ CD प्लेयर, एज एन ऑडियो प्लेयर वी कैन यूज़ इट, we can even play some movies if required. So those were some video gaming devices that were able to play audio and video as well. The next device is PDA, which is also known as personal digital assistant. These are also some devices like mobiles. These are a bit having a bit larger screen as compared to the mobiles, and they can be used as they can be called as handheld computers. इनको handheld computers कहा जाता है. They are generally used by the business persons. They generally used to carry this to take a note of all the important meetings that they are going to attend, about all the address books, all the contact list that they have, and what all task they have to perform. So for doing such basic operations, they generally used to carry this PDAs. All right, so these PDAs were also having the internet connectivity option, so you can even connect to the internet and search for wider informations if required. All right, so PDAs, what all details that PDA have? So PDAs generally have a feature of digital camera, means you can take photographs, है ना। तो वो भी एक PDA में फीचर होता है। अ स्मार्टफोन इज़ अ मोबाइल फ़ोन दैट प्रोवाइड्स द फंक्शंस ऑफ अ PDA इन अ फ़ोन, है ना। एक स्मार्टफोन भी जो है वो एक ऐसा मोबाइल फ़ोन है जो PDA के फंक्शंस मोबाइल में प्रोवाइड कर रहा है ना। तो हमारे पास आजकल हमारे मोबाइल भी हम कह सकते हैं कि दीज आर ऑल पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, बिकॉज दे आर एबल टू रिकॉर्ड और ट्रैक और कीप अ नोट ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट वी डू, ठीक। तो यहाँ पर हम इंटरनेट का यूज़ करके जनरली करते हैं, वी आर यूजिंग आवर इंटरनेट फॉर एक्सेसिंग द इंटरनेट, प्लेइंग गेम्स, टेकिंग पिक्चर्स एंड लिसनिंग टू सॉन्ग्स। तो PDS में भी यही सारी फीचर्स होते थे। नेक्स्ट है डिजिटल कैमरास। डिजिटल कैमरास के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। मेमोरी कार्ड लगता है, पहले आते थे कैमरा जिनमें रोल लगता था, है ना, एक फिल्म रोल लगता था, उसमें 36 फ़ोटोज़ आती थी, फिर उसको डार्क लाइट में उसको धुलवाते थे, फिर वो अपनी फ़ोटो प्रिंट होकर आती थी। सो दोज वर रिप्लेस्ड बाय सम डिजिटल कैमरास। what advantage does this digital camera had? So digital camera had some memory device, means they have some memory under which you can put a memory card, and you can take photos as many as you want एज़ पर द कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी कार्ड, है ना। जितने आपकी मेमोरी कार्ड की कैपेसिटी होगी उतनी फ़ोटोज़ आप क्लिक कर सकते हो, ठीक। और कुछ कुछ मेमोरी कार्ड्स में या ज़्यादातर मेमोरी कार्ड्स में हम कह सकते हैं ऐसे कुछ ऑप्शंस भी होते हैं कि डायरेक्टली आप आपके प्रिंटर पे इसको कनेक्ट कर सकते हो और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, जो कि ट्रेडिशनल कैमराज में पॉसिबल नहीं था और डिजिटल कैमराज में पॉसिबल है। नेक्स्ट है डिजिटल वीडियो कैमराज। जैसे और ये कैमराज थे वैसे वीडियो कैमराज भी आते हैं। तो ये भी डेटा क्या करते हैं, डिजिटल फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे कि जो डिजिटल कैमकोडर्स या वेब कैमरास जो होते हैं, ये डिजिटल वीडियो कैमरास का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये अपने मेमोरी कार्ड में या किसी CD में या किसी DVD में डायरेक्टली आपके ऑडियो वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये इसका एक एडेड एडवांटेज होता है, ठीक है। वेब कैमरा जो होता है, वेब कैमरा इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल वीडियो कैमरा, जो कि इमेजेस को कैप्चर कर सकता है और इमेजेस को इंटरनेट के थ्रू हम कहीं भी भेज सकते हैं, ठीक। वेब कैमराज वायर्ड और वायरलेस दोनों होते हैं, केबल के थ्रू कनेक्ट कर लो या वायरलेसली कनेक्ट कर लो।
ठीक है, ये कुछ डिवाइसेस के नाम थे जो हमको पता होने चाहिए कि कौन कौन से डिजिटल डिवाइसेस हैं। तो ये कुछ नाम थे, मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी ऐसा नाम होगा जो आपको नहीं पता हो। MP3 प्लेयर, CD प्लेयर, मोबाइल फ़ोन, वीडियो गेम्स, PDAs, डिजिटल कैमरा, डिजिटल वीडियो कैमरा, तो ये सारे नाम सुने हुए थे, उनके बारे में हमको इन्होंने यहाँ पर बताया था। ठीक है, अब यहाँ पर डिजिटल ऑडियो की कुछ बात की गई है। डिजिटल ऑडियो क्या होता है? Generally, audio, they have explained that generally an audio is of two types, that is analog and digital. When we speak, the sound you create is in the analog or wave format, है ना। जैसे कि मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ डायरेक्टली और आप लोग मेरे सामने खड़े हो और आप लोग मुझे सुन पा रहे हो, सो तो ये जो फॉर्म होता है स्पीकिंग का या बोलने का, वेयर ऑडियो इज़ प्रोड्यूस्ड, तो ये जो होता है ये फॉर्म को क्या बोला जाता है? इस फॉर्म को बोला जाता है कि दिस इज़ अ एनालॉग वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ यू, है ना। द साउंड दैट यू हियर इज़ इन एनालॉग फॉर्मेट। कंप्यूटर्स जो होते हैं वो बेसिकली डिजिटल डिवाइसेस होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, अब आपको कंप्यूटर में कोई चीज़ इनपुट करनी है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपका ये जो एनालॉग वॉइस है, जो मैं बोल रहा हूँ, जो आपको आवाज़ आ रही है, ये तो चलो आप सामने खड़े हो तो आपको आवाज़ आ रही है, बट अगर कोई सामने नहीं होता, जैसे अभी की सिचुएशन में आई एम एट होम, यू ऑल आर एट योर होम्स एंड यू आर एबल टू हियर व्हाट आई एम टेलिंग, है ना। तो ये क्या हुआ, ये मेरे वॉइस का एनालॉग पार्ट नहीं है, ये मेरे वॉइस का एक डिजिटल फॉर्म है जो आप तक पहुंचा है ना। मेरी वॉइस का एक डिजिटल फॉर्म है ये जो आप तक पहुंचा है। अगर आप लोग सामने होते, वी वर इन अ क्लास, यू ऑलवेज सिटिंग एंड आई वाज टीचिंग, सो दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी अ एनालॉग फॉर्म ऑफ टीचिंग। मैं सामने हूँ, मैं कोई रिकॉर्डेड ऑडियो या रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर रहा होता, मैं आप लोगों के सामने खड़े होकर बोल रहा होता, आई वुड बी स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। तो वो क्या होगा, वो एनालॉग फॉर्म होगा मेरे बोलने का। बट इफ़ आई एम रिकॉर्डिंग समथिंग एंड देन आई एम ट्रांसफरिंग इट टू यू, देन आई एम प्रोवाइडिंग इट टू यू, सो दिस इज़ अ डिजिटल फॉर्म ऑफ मीडिया, है ना। मोबाइल फ़ोन्स क्या है, डिजिटल डिवाइसेस हैं। अब अभी आप मोबाइल फ़ोन्स में देख रहे हो ना, तो मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया तो मोबाइल में ही रिकॉर्ड किया, इसको मोबाइल में रिकॉर्ड कर कर कहीं पर अपलोड किया, तब जाकर आप तक पहुँचा। तो ये क्या हुआ, दिस इज़ अ डिजिटल फॉर्म ऑफ ऑडियो, है ना। तो दो तरीके के ऑडियोज़ हो सकते हैं, डिजिटल और एनालॉग, ठीक है। इसकी यहाँ पर बात की गई है। अब डिजिटल ऑडियो टेक्नोलॉजी हमारा मेन फोकस है, हम यहाँ पर डिजिटल ऑडियो के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, तो यहाँ देखते हैं। डिजिटल ऑडियो टेक्नोलॉजी अलाउज यू टू रिकॉर्ड, एडिट एंड प्ले डिजिटल ऑडियो फाइल्स on a computer. Digital audio technology also lets you communicate with the computer by just speaking. This lesson introduces you to digital audio technology. It also briefly describes the concepts of copying and converting digital audio. ठीक है, तो डिजिटल ऑडियो क्या होता है? डिजिटल ऑडियो वो होता है जो कि हमको रिकॉर्ड, एडिट या किसी ऑडियो फाइल को प्ले करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है किसी कंप्यूटर पे, ठीक है। अब डिजिटल ऑडियो से हम क्या कर सकते हैं, आप लोगों ने सुना होगा मोबाइल्स में आजकल ऐसे फीचर्स भी आते हैं कि बोलो तो भी काम हो जाता है, बोलने से लिखा जाता है, बोलने से टाइप होने लगता है, बोलने से मोबाइल आपका रिस्पॉन्ड करने लगता है। सो वो क्या है, वो आपके डिजिटल ऑडियो का यूज़ करके रिस्पॉन्ड कर रहा है ना। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो सारे डिजिटल ऑडियो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको डिजिटल ऑडियो के बारे में बहुत सी चीज़ें सिखाई गई हैं। आप बस इतना समझो, एनालॉग ऑडियो क्या होता है। एनालॉग ऑडियो मतलब ऐसा टाइप का ऑडियो जो आप डायरेक्टली किसी को कम्युनिकेट कर रहे हो, जिसमें एडिटिंग पॉसिबल नहीं है, जिसको प्ले करना पॉसिबल नहीं है, वो आपका एनालॉग ऑडियो का फॉर्म होगा। बट अगर मैं किसी चीज़ को रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लूँ और फिर उसमें कुछ चेंजेस कर दूँ और फिर आप तक पहुँचाऊँ, तो वो एक डिजिटल ऑडियो कहलाएगा, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर डिजिटल ऑडियो। नाउ लेट अस सी व्हाट ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स डज दिस डिजिटल ऑडियो हैव। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजिटल ऑडियो दैट इज कैन बी compressed। डिजिटल ऑडियो की सबसे खासियत क्या होती है कि उसको कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। आप लोग कभी इंटरनेट पे कोई गाना अगर सर्च करोगे और आप बोलोगे कि मुझे अब ये गाना डाउनलोड करना है, तो यू विल फाइंड अ पर्टिकुलर 5 मिनट सॉन्ग इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। जैसे कि समझो इस बात को कि एक 5 मिनट का गाना है, तो वो 5 मिनट का गाना आपको अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होगा। 2 MB में भी मिल जाएगा इंटरनेट पर, सेम गाना आपको 5 MB में भी मिल जाएगा, और सेम गाना आपको 12 MB में भी मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो एक ही गाना है, सेम लाइन्स हैं, सेम म्यूज़िक है, बट सेम गाना कहीं पर 2 MB में मिल रहा है, कहीं पर 5 MB में मिल रहा है, और कहीं पर हमको 12 MB में मिल रहा है।
So what is happening over here is that digital audio has been compressed. उस डिजिटल ऑडियो को क्या कर दिया गया है, कहीं पर कंप्रेस कर दिया गया है, कहीं पर बिना कंप्रेस करे डाल दिया गया है. तो यहाँ पर इस तरीके से डिजिटल ऑडियो के साथ हम कुछ कुछ क्या कह सकते हैं, ऑल्ट्रेशंस कह सकते हैं, वो हम कर सकते हैं. ठीक है. सो ये एक बहुत बड़ा क्या कह सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है आपके डिजिटल ऑडियो का. आगे बढ़ते हैं. क्या होता है, कंप्रेस्ड ऑडियो फाइल सेव स्पेस, अलाउ पोर्टेबिलिटी एंड आर इजी टू ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट. अगर आपकी फाइल कंप्रेस्ड है सो इट विल बी कंज्यूमिंग लेस स्पेस. Definitely it would be consuming less space, and as less space it will consume, that easy it would be to transfer it over the internet, because it would be consuming less number of space. जब less space occupy करेगा तो उसको इंटरनेट पर पहुंचाना भी उतना ही आसान होगा. तो ये चीज़ें यहाँ पर डिजिटल ऑडियो के साथ पॉसिबल है. ठीक है. बट एक चीज़ ध्यान रखना, क्वालिटी जो होती है उस ऑडियो की वो इफ़ेक्ट पड़ता है उसकी क्वालिटी पे. आप 12 MB का गाना सुनोगे और वही गाना 2 MB की क्वालिटी में सुनोगे तो यू वुड डेफिनेटली फील द डिफरेंस ऑफ द साउंड क्वालिटी. जैसे कि यूट्यूब पे वीडियोस होते हैं ना, कभी कभी कम क्वालिटी 240 पे देखो और उसी वीडियो को 1080 पे देखो तो यू कैन फील द डिफरेंस. सो द सेम डिफरेंस कम्स इन द डिजिटल ऑडियो एज वेल. ऑलराइट, लेट अस सी व्हाट ऑल थिंग्स आर गिवन टू अस. Another important characteristic of digital audio is that it can be edited. डिजिटल ऑडियो के साथ एक और एडवांटेज क्या है, उसको एडिट किया जा सकता है. गाने रिकॉर्ड होते हैं, म्यूज़िक वीडियोस रिकॉर्ड होते हैं, तो वो लोग साउंड में कुछ अल्ट्रेशंस करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं. तो वो मॉडिफिकेशंस कैसे करते हैं, तो वो मॉडिफिकेशन ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं. ठीक है. तो ये एक एडेड एडवांटेज है हमारे साथ कि जो आपका डिजिटल ऑडियो होगा उसको हम एडिटिंग कर सकते हैं, उसको हम डिज़ायर्ड तरीके से जैसा आउटपुट चाहिए वैसा कुछ प्लस माइनस कर मॉडिफाई किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल यू कैन यूज़ दिस सॉफ्टवेयर टू मूव सेक्शंस विद इन एन ऑडियो फाइल और ऐड इफेक्ट्स. है ना, कि आप लोग कुछ सेक्शंस आगे पीछे ऑडियो को कर सकते हो, या तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग सिंपली यहाँ पर कुछ इफ़ेक्ट्स भी इनपुट कर सकते हो आपके पर्टिकुलर ऑडियो में. तो ये सारी चीज़ें हमको प्रोवाइड की जाती हैं एक डिजिटल ऑडियो के साथ. आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है. यू कैन ऑल्सो यूज़ ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर टू स्टोर एंड ऑडियो फाइल इन डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑन वन कंप्यूटर. तो यहाँ पर अलग अलग ऑडियो के फॉर्मेट्स होते हैं. एक होता है MP3, एक और होता है AAC, ये भी एक ऑडियो का फॉर्मेट है. एक होता है वेव, ये भी एक ऑडियो का फॉर्मेट है. एक होता है AMR. तो ये कुछ अलग अलग ऑडियो के फॉर्मेट्स हैं. ठीक है. तो क्या होता है, MP3 में भी गाना प्ले होगा, वेव में भी होगा, AMR में भी होगा, AAC में भी होगा, बट थोड़ा बहुत इनकी साउंड क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है. AMR सबसे डाउन होता है. नेक्स्ट आप कह सकते हो कि वेव होता है, फिर MP3 होता है और फिर AAC होता है. तो ये इस लेवल पे चलते हैं. इनकी क्वालिटीज़ में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है. तो यहाँ पर इनका कहना ऐसा है कि आपने एक बार किसी ऑडियो को रिकॉर्ड कर लिया ना, अब इट्स अप टू यू दैट यू कैन एडिट इट इन एनी वे यू वांट. यू कैन स्टोर इट इन योर कंप्यूटर्स इन एनी ऑफ द फॉर्मेट यू वांट. सो दिस इज़ एन एडेड एडवांटेज ऑफ डिजिटल ऑडियो. ठीक है. बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं एक ऑडियो फाइल के जो हम स्टोर कर सकते हैं. अच्छा, नेक्स्ट पेज पे दिए हुए हैं. चलो ठीक है. तो यहाँ पर देखो, ये मुझे नहीं पता था, ये यहाँ पर दिए हुए उन्होंने. एक वेव फॉर्मेट होता है, एक MPEG ऑडियो लेयर 3 होता है जिसको MP3 बोलते हैं. एक होता है WMA, विंडोज़ मीडिया प्लेयर में जो गाने चलते हैं वो जनरली WMA फॉर्मेट में होते हैं. तो यहाँ पर इन तीनों के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. वेव ऑडियो क्या था, तो ये तो बस इनके बारे में बताया है कि ये कुछ ऑडियो के फॉर्मेट्स हैं. आपको बस इतना याद रखना है कि ये ऑडियो फॉर्मेट्स हैं और इनसे हम ऑडियो लिसन कर सकते हैं. ठीक है. आगे देखते हैं. और डिजिटल ऑडियो ऑल्सो अलाउज स्ट्रीमिंग ऑफ डिजिटल ऑडियो फाइल्स. विथ ऑडियो स्ट्रीमिंग यू डू नॉट हैव टू वेट कम्प्लीटली डाउनलोड अ लार्ज ऑडियो फाइल फ्रॉम द इंटरनेट टू प्ले इट. आजकल आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारी ऐप्स आती हैं जैसे गाना, सावन, है ना, सुना होगा आप लोगों ने, स्पॉटिफाई. So all these apps, what they generally do, they don't want you to download the songs. As soon as you will click on a particular song, the song will directly start to play होने लगेगा विदाउट डाउनलोडिंग इट. है ना, डाउनलोड किए बिना वो गाना प्ले होने लगेगा. और वो क्या होता है, वो स्ट्रीम होता है. स्ट्रीम होने का मतलब है थोड़ा सा लोड करेगा,
प्ले होता रहेगा, उतनी देर में आपका गाना वहाँ तक पहुँचेगा नहीं और वो आगे के गाने को भी लोड कर देगा। तो इसको बोलते हैं म्यूज़िक स्ट्रीमिंग, ऑडियो स्ट्रीमिंग इसको कहा जाता है। तो ये भी डिजिटल ऑडियो के साथ पॉसिबल है। यूट्यूब भी सेम कंसेप्ट पे वर्क करता है। आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो स्ट्रीम करते हैं, कभी कभी वीडियो लोड नहीं होता है तो बफरिंग लिखा हुआ आ जाता है स्क्रीन पे। अदरवाइज़ आप लोग एक 2 घंटे के वीडियो को भी प्ले करना चालू करोगे तो वो स्टार्टिंग से प्ले होने लगता है। ऐसा नहीं होता कि पूरा 2 घंटे का वीडियो या 1 घंटे का वीडियो है तो वो उतनी देर पहले उसको लोड करेगा, है ना, और फिर लोड करके फिर आपको प्ले करके देगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या होता है, इन पे कुछ आप कह सकते हो कि स्ट्रीमिंग का ऑप्शन हमको अवेलेबल होता है। ओवरव्यू ऑफ कॉपिंग एंड कन्वर्टिंग डिजिटल ऑडियो। डिजिटल रिकॉर्डिंग इज़ अ टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग एंड, अब देखो यहाँ पर हमने डिजिटल ऑडियो के बारे में पढ़ लिया, अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, डिजिटल रिकॉर्डिंग के बारे में, है ना। अब डिजिटल रिकॉर्डिंग क्या होती है, ये एक टेक्निक है जिसका यूज़ करके हम ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको रिकॉर्ड कर कर हम हमारे कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्मेट के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। डिजिटली किसी ऑडियो को रिकॉर्ड कर कर हम हमारे कंप्यूटर में रख सकते हैं। जिस ऑडियो फॉर्मेट में आप चाहो उस ऑडियो फॉर्मेट में उसको रख सकते हो, ठीक है। अब उसको रिकॉर्ड करने के बाद क्या करो, उसको सीडी में डाल लो, सीडी में राइट कर लो, सीडी में कॉपी कर लो। सीडी में जब कभी किसी चीज़ को कॉपी किया जाता है, एक ख़ास चीज़ ध्यान रखना, जब हम कॉपी कर रहे हैं किसी चीज़ को सीडी के अंदर तो उस प्रोसेस को बोला जाता है बर्निंग। याद रखना इस बात को, कॉपी नहीं बोलते उसको। सीडी में कॉपी कर दो या सीडी में डेटा कॉपी कर रहा हूँ ऐसा नहीं बोलते, सीडी में डेटा बर्न कर रहा हूँ। सीडी में डेटा कॉपी करने की एक अलग टेक्निक होती है, एक अलग वे होती है। कॉपी करने के लिए अलग अलग कुछ अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है, जिनका यूज़ करके आप लोग सीडी में डेटा को कॉपी करते हो। जैसे पेन ड्राइव में कॉपी करते हैं ना, वैसे उतना सिंपल नहीं होता सीडी में डेटा कॉपी करना, डीवीडी में डेटा कॉपी करना, है ना। तो उसमें क्या होता है, एक अलग से सॉफ्टवेयर आता है जिनका यूज़ करना पड़ता है और उन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके ही आप सीडी में डेटा को कॉपी कर सकते हो। तो सीडी में डेटा कॉपी करने की प्रोसेस को बोला जाता है बर्निंग। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और बर्निंग करने के लिए भी ऐसा नहीं है कि बर्निंग करनी है अगर आपको, तो किसी ऑडियो को बर्न करने के लिए आप लोगों को ऐसा नहीं है कि सिंपली किसी में कोई भी सीडी के उसमें लगा दिया ड्राइव में और बर्न हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। यहाँ पर बर्न करने के लिए आप लोगों को कुछ स्पेशल हार्डवेयर डिवाइसेस लगेंगे जिनको सीडी राइटर या डीवीडी राइटर बोला जाता है। अगर आप लोगों के पास सीडी राइटर या डीवीडी राइटर नहीं है तो आप लोग सीडी बर्न नहीं कर सकते, मतलब आप सीडी कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। अगला है कन्वर्टिंग ऑडियो। सीडी प्लेयर का जो ऑडियो होता है वो ऑडियो कुछ अलग फॉर्मेट का होता है, ठीक है। जैसे जो सीडी प्लेयर्स आते हैं ना, सीडी प्लेयर में जो ऑडियोज़ चलते हैं वो ऑडियो अलग होता है और MP3 जो होता है वो ऑडियो अलग होता है। तो हम इस सीडी प्लेयर का अगर हमारे पास कोई ऑडियो है तो उसको MP3 में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। मतलब कि हम एक फाइल फॉर्मेट से, एक ऑडियो फॉर्मेट से दूसरे ऑडियो फॉर्मेट में हमारे डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस फीचर इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड टू अस, ये हमको पता होना चाहिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्पीच रिकॉग्निशन एंड सिंथेसिस। अब ये क्या चीज़ है इसको थोड़ा सा समझते हैं। डिजिटल audio technology allows you to interact with the computer just by speaking। डिजिटल ऑडियो टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, अगर आपका कोई डिजिटल ऑडियो है तो आप उस डिजिटल ऑडियो का यूज़ करके आपके मोबाइल्स को भी कंट्रोल कर सकते हो सिर्फ बोल के। आप लोगों ने सुना होगा ओके गूगल, सिर्फ इतना बोलो अपने मोबाइलों में तो वो क्या होता है, आपका मोबाइल रिस्पॉन्ड करने लगता है कि नहीं। जैसे आप बोलते हो ओके गूगल, तो ओके गूगल बोलने पर आप लोगों के मोबाइल्स में ये देखो, ये एक अलग से कुछ स्क्रीन्स आ जाती हैं आप लोगों के ऊपर मोबाइल्स में। तो उस तरीके की स्क्रीन्स जनरली आप लोगों को दिखने लगती है जिसमें वो आप लोग कुछ बोल कर अपने मोबाइल को ऑपरेट कर सकते हो, ठीक। तो ये होता है स्पीच सिंथेसिस। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, देयर इज़ एन एग्जांपल विच इज़ गिवन टू अस। इमेजिन अ सिनेरियो, एरिक एंडरसन हैज़ फिनिश्ड राइटिंग हिज शॉर्ट स्टोरी। Eric wants to read the short story once before sending it to the publisher but is tired. Therefore, he decides to use speech synthesis feature, also referred to as a text to speech feature in Microsoft Windows Vista, to listen a short story.
जैसे कि एक एरिक एंडरसन, एक एग्जांपल दिया हुआ है दैट एरिक एंडरसन इज़ अ पर्सन हु हैज़ जस्ट फिनिश्ड राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी। उसने शॉर्ट स्टोरी लिखी है, अब उसको किसी को शॉर्ट स्टोरी भेजने से पहले क्या करना है, उसको पढ़ना है एक बार। अब शॉर्ट स्टोरी लिख तो दी बट ही इज़ फीलिंग टायर्ड टू रीड दैट स्टोरी। तो ऐसे समय पर क्या करें, क्या हमारी हेल्प कर सकता है? तो ऐसे समय पर एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको बोलते हैं स्पीच सिंथेसिस। दिस टेक्निक ऑफ स्पीच सिंथेसिस कैन हेल्प यू आउट टू रीड अ पर्टिकुलर टेक्स्ट विच इज़ रिटन, है ना, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको रीड करके सुना सकता है। कौन? ये स्पीच सिंथेसिस नाम की टेक्निक। इस स्पीच सिंथेसिस टेक्निक को टेक्स्ट टू स्पीच फीचर भी कहा जाता है। ये हमारे मोबाइलों में भी होता है टेक्स्ट टू स्पीच का फीचर, ठीक है। तो टेक्स्ट टू स्पीच फीचर जो होता है इसको स्पीच सिंथेसिस भी बोला जाता है। ये टेक्नोलॉजी क्या होती है? इट इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज द कंप्यूटर टू स्पीक टू यू बाय कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू डिजिटल ऑडियो, है ना। यहाँ पर क्या हुआ, जो आपने टेक्स्ट लिखा उस टेक्स्ट को कंप्यूटर ने पढ़कर सुनाया। तो एक टेक्स्ट था, उस टेक्स्ट का कंप्यूटर ने क्या किया, एक डिजिटल ऑडियो प्रोड्यूस किया। तो उस टेक्स्ट का कंप्यूटर ने डिजिटल ऑडियो प्रोड्यूस किया है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पीच सिंथेसिस, ठीक है। विंडोज़ विस्टा के बाद से नरेटर करके एक सॉफ्टवेयर विंडोज़ कंप्यूटर्स में ऑलरेडी आता है। ये आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए टेक्स्ट को रीड करने के काम में लिया जाता है। नेक्स्ट एक हो गया स्पीच सिंथेसिस। एक अगली टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं स्पीच रिकॉग्निशन। इसको थोड़ा सा समझते हैं, चलो। Imagine a scenario. Eric Anderson is using Microsoft Office Word 2007 to write a short story. However, his typing speed is slow and it takes him long time to complete the story. है ना? To solve this problem, Eric's friend advises him to use the speech recognition feature of Windows Vista. अब ये दूसरा सिनेरियो है जहाँ पर एरिक एंडरसन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का यूज़ कर रहा है अपनी शॉर्ट स्टोरी लिखने में। पर शॉर्ट स्टोरी लिखने में क्या हो रहा है, उसकी जो टाइपिंग स्पीड है वो बहुत कम है। तो टाइपिंग स्पीड कम होने के कारण क्या हो रहा है, वो बहुत धीरे धीरे लिख रहा है। इट इज़ टेकिंग अ लॉन्ग टाइम टू टाइप द स्टोरी। तो उसके किसी फ्रेंड ने क्या बोला कि भैया ये करने से अच्छा है आप क्या करो, किसी स्पीच रिकॉग्निशन टेक्निक का यूज़ करो। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ विस्टा में कुछ स्पीक रिकॉग्निशन टेक्निक्स आती हैं, कुछ स्पीच रिकॉग्निशन फीचर प्रोवाइड किया गया है। ये क्या करेगा स्पीच रिकॉग्निशन फीचर? ये जो अभी स्पीच सिंथेसिस ने किया ना, स्पीच सिंथेसिस ने क्या किया, लिखे हुए टेक्स्ट को उसने डिजिटल ऑडियो में कन्वर्ट किया। अब ये क्या करेगा, ये एनालॉग ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। एनालॉग ऑडियो क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, है ना, मैं बोल रहा हूँ तो मेरी वॉइस को यूज़ कर रहा है। मेरी वॉइस को यूज़ करके ये स्क्रीन पर लिखता जाएगा। ये जो टेक्निक होती है इसको बोलते हैं स्पीच रिकॉग्निशन। ये मोबाइल्स में भी पॉसिबल है, ठीक है। दिस टेक्निक इज ऑल्सो पॉसिबल इन मोबाइल्स। यू कैन स्पीक समथिंग एंड इट विल टाइप इट फॉर यू। सो दिस टेक्निक इज ऑल्सो पॉसिबल इन आवर मोबाइल्स। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है डिजिटल वीडियो। जैसा हमने डिजिटल ऑडियो पढ़ा वैसा का वैसा डिजिटल वीडियो भी होता है। डिजिटल वीडियो भी क्या होगा कि जिसमें आपके वीडियो को रिकॉर्ड किया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है और स्टोर किया जा सकता है, ठीक है, आपके किसी भी डिजिटल डिवाइस पर, ठीक है। अब उसको स्टोर करके रख सकते हैं कहीं पर भी, सीडी, डीवीडी, फ्लैश मेमोरी। कंप्यूटर्स में एडिट भी किया जा सकता है उस डिजिटल ऑडियो को डिजिटल एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके। तो और इनमें कुछ अगर आपको ट्रांजिशंस डालने हैं, कुछ नया सीन ऐड करना है, स्पेशल इफ़ेक्ट्स डालने हैं, कुछ टाइटल्स लिखना है, तो बहुत सारी तरीके की एडिटिंग की जा सकती है। अब डिजिटल वीडियो की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसकी खास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यू कैन एडिट दैम इजीली ऑन अ कंप्यूटर यूजिंग डिजिटल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। आप किसी भी बनाए हुए वीडियो को एडिट कर सकते हो और उसमें मन चाहे चेंजेस ला सकते हो। तो ये आप लोगों का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है डिजिटल वीडियो के साथ। बाद में आप उसको अपलोड कर सकते हो किसी वेबसाइट पर और इंटरनेट पर शेयर कर सकते हो, ताकि जिसको आप देना चाहो उस तक वो वीडियो को पहुंचा सकते हो। एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसको कंप्रेस किया जा सकता है। जैसे ऑडियो फाइल्स को किया जा सकता था वैसे इसको भी किया जा सकता है, पर कंप्रेस करोगे तो क्या होगा, क्वालिटी डिग्रेड होगी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं एनालॉग कैमकोडर्स और डिजिटल कैमकोडर्स। दो चीज़ें बताई हुई हैं, दो डिवाइसेस बताए हुए हैं। चलो देखते हैं क्या है।
An analog camcorder records and stores video in analog format on a tape. To edit the video on a computer, you need to convert it from the analog format to digital format. पुराने समय में देखा था कैसेट्स आती थी, तो ऐसा ही वीडियो में भी होता था. वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए भी कुछ कैसेट्स होती थी जिनमें वीडियो रिकॉर्ड किया जाता था. अब आपको उसमें एडिटिंग करनी है तो वो तो एनालॉग फॉर्म में, आपने ऐसे डिवाइस से उसको रिकॉर्ड किया है जो डिजिटल डिवाइस नहीं था. अब जब वो डिजिटल डिवाइस नहीं था तो उसमें अगर आपने किसी चीज़ को रिकॉर्ड किया है तो उसके साथ एडिट करना, उसके साथ कंप्रेस करना, ये सारे फीचर तो आपको मिलेंगे नहीं क्योंकि वो डिजिटल डिवाइस नहीं है. तो वहाँ एनालॉग डिवाइस को पहले क्या करना पड़ता है, एनालॉग डिवाइस से रिकॉर्ड किए हुए आपके जो भी वीडियो रहेंगे उनको पहले आपको एनालॉग फॉर्मेट से डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद ही उसमें हम चेंजेस या एडिटिंग कर सकते हैं. तो ये होता था एनालॉग कैमकोडर. आज के समय में उनकी जगह कितने रिप्लेस कर ली है, डिजिटल कैमकोडर्स आ गए हैं. ये क्या करते हैं, डिजिटल फॉर्मेट में आपका वीडियो सेव कर लेते हैं मेमोरी कार्ड्स या कुछ में, और साइजेस भी इनके काफ़ी छोटे होते हैं. ठीक है, और यहाँ पर हम डायरेक्टली इनको कंप्यूटर्स में, ये तो ऑलरेडी डिजिटल फॉर्म में, कंप्यूटर में लगाओ, एडिट करो और शेयर करो. आपको इसको एनालॉग में तो है नहीं, किसी और फॉर्मेट में तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, डिजिटल वीडियो एडिटिंग एंड आउटपुट फॉर्मेट्स. अब क्या क्या डिजिटल वीडियो एडिट के क्या क्या फॉर्मेट्स हो सकते हैं उनको थोड़ा सा हम समझते हैं. इमेजिन अ सिनेरियो, एक और सिनेरियो है, वेर यू हैव टू रिकॉर्ड योर फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी बाय यूजिंग अ कैमकोडर. एक आपके पास कैमकोडर है, देखा होगा कैमकोडर एक हाथ में होल्ड करके रखते हैं और उससे रिकॉर्डिंग करते हैं, जो कैमरे जैसे ही होता है पर उसको पूरे हाथ से पकड़ना पड़ता है, तो वो होते हैं कैमकोडर्स. तो आप, एक सिनेरियो है ये आपके पास कि जहाँ पर आपको आपके बर्थडे पार्टी एक फ्रेंड की है उसको रिकॉर्ड करना है. यू वुड लाइक टू ऐड सर्टेन इफेक्ट्स टू योर वीडियो टू मेक इट लुक बेटर यूजिंग डिजिटल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर. अब किसी डिजिटल एडिटिंग वीडियो सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आपको, आपने जो ये वीडियो रिकॉर्ड किया आपके दोस्त के बर्थडे पार्टी का, उसको थोड़ा और अच्छा बनाना है. यू वांट इट टू लुक बेटर. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ डिजिटल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करना पड़ेगा. ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोग ऑलरेडी जानते हो, कुछ ऐसा नहीं है जो मैं बहुत नया कुछ आप लोगों को बता रहा हूँ. ये सब चीज़ें आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि ऐसा होता है. ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, टाइटल्स, बैकग्राउंड म्यूज़िक, सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं. कुछ पार्ट अगर हमारे काम का नहीं है तो उसको कट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, स्पेशल इफेक्ट्स डाल सकते हैं. वीडियो धीरे से स्क्रीन पे आएगा, धीरे से स्क्रीन से जाएगा, तो फेड इन फेड आउट इफेक्ट डाल सकते हैं. वीडियो को एनहांस कर सकते हैं, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, कलर सब एडिट कर सकते हैं, है ना. और किसी एक वीडियो के ऊपर अगर आपको अलग से ऑडियो डालना है तो वो भी इनपुट करने का ऑप्शन हमको मिल जाता है. तो ये सारी फीचर हमको डिजिटल वीडियो डिवाइसेस, डिजिटल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके मिलता है. इसमें भी बहुत सारे वीडियोस के फॉर्मेट्स होते हैं जिन पे डॉक्यूमेंट स्टोर होता है, जैसे WMB एक होता है, एक MP4 होता है, एक MKV होता है, एक AVI होता है. तो बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं. WMV होता है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर का एक फॉर्मेट होता है. तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम हमारे एक वीडियो को अलग अलग फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. एक वार्निंग दी गई है, किसी भी वेब से डाउनलोड किए गए वीडियो को CD में स्टोर करना इल्लीगल होता है ना. तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताई हुई हैं. कोई कॉपीराइट वीडियो है जो किसी को ऑलरेडी बिलोंग करता है और आप उसकी परमिशन के बिना उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो वो एक क्राइम है, ऐसा नहीं करना चाहिए. वेब वीडियो टेक्नोलॉजी. अब ये वेब वीडियो टेक्नोलॉजी क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं. These days you can view video over the internet. Web video technologies allow you to transfer digital video files over the internet. Some of the examples are video streaming, downloading video, web conferencing. ठीक है, ये जो आप अभी देख रहे हो वो भी एक वेब वीडियो टेक्नोलॉजी का एग्जांपल है. और वो कौन सा है, वो है वीडियो स्ट्रीमिंग. अगर हम जूम पे क्लास लेंगे तो वो कहलाएगा वेब कॉन्फ्रेंसिंग. और अगर मैं व्हाट्सएप पे कोई वीडियो भेज दूंगा आपको और बोलूँगा उस वीडियो को देख लो तो वो कहलाएगा डाउनलोडिंग वीडियो. तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनका यूज़ करके हम आज के समय में फाइल्स को इंटरनेट का यूज़ करके अलग अलग प्लेसेस तक सेंड कर सकते हैं. डिजिटल फोटोग्राफी. अब डिजिटल फोटोग्राफी क्या होती है तो इसको थोड़ा सा समझते हैं. आप लोगों को पता होगा फोटोग्राफी
Simple photo editing. Sometimes when you take picture of your friends, their eyes appear red in the picture. This is called red eye effect. आप लोगों ने देखा होगा कभी कैमरे से फ़ोटो खींचो ना, तो कभी कभी फ्रेंड्स की, बहुत सारे दोस्तों की फ़ोटो खींची, लाइट कम था, आपने फ्लैश चमकाया तो फ्लैश जैसे ही आपका फ्लैश करता है तो क्या होता है कि एक आँखों पर रेड आई इफेक्ट आ जाता है, आँखें लाल दिखने लगती हैं। तो इस तरीके से अगर उस रेड आई इफेक्ट को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको कोई सा सिंपल फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ेगा जो कि इस इफ़ेक्ट को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका यूज़ करके आप लोग सिंपल फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, फ़ोटो एडिटिंग में इनमें क्या होता है, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, कलर, ये सब सेट कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो। मतलब जैसे कि कोई इतनी बड़ी फ़ोटो है और उसमें से ये वाला हिस्सा काम का नहीं है तो आप इतना हिस्सा भी रख सकते हो उसमें से, इसको क्रॉपिंग बोलते हैं। फ़ोटो का साइज़ छोटा है, आपको बड़ा करना है तो आप इतना बड़ा भी कर सकते हो। उसकी थोड़ी सी क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो सकती है पर वो बड़ा ज़रूर हो जाएगा वीडियो और इमेज। और पिक्चर्स को प्रिंट भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिंपल फ़ोटो एडिटिंग में बताई है। अब एडवांस फ़ोटो एडिटिंग क्या होती है, सिंपल देख लिया, अब एडवांस देखते हैं। एडवांस फोटो एडिटिंग में क्या होता है, आप लोगों के पास कुछ अलग से टूल्स होते हैं, कुछ वीडियो को, पिक्चर को एनहेंस करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं, जिन टूल्स का यूज़ करके आप आपके फ़ोटो को और अट्रैक्टिव बना सकते हो। जैसे जैसे कि बैकग्राउंड ही चेंज कर दिया, ब्लर कर दिया बैकग्राउंड में कुछ डिज़ाइन लगा दी, टेक्स्ट लिख दिया कुछ, तो ये एडवांस्ड फ़ोटो एडिटिंग कहलाती है ना। बेसिक फ़ोटो एडिटिंग जो सिंपल बेस फ़ोटो एडिटिंग क्या थी, साइज़ छोटा कर दिया, फ़ोटो का क्रॉप कर दिया, रीसाइज कर दिया, तो इस तरीके की जो चीज़ होती है वो सिंपल फ़ोटो एडिटिंग होती है। कुछ कुछ आज के समय में ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं जिनको फ़ोटो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स कहा जाता है, जिनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ आपकी फ़ोटोज़ को स्टोर करके रखना। जैसे कि गूगल फ़ोटोज़ एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके फ़ोटोज़ आपने जो भी मोबाइल में खींची है उनको ऑनलाइन स्टोर कर लेता है, और कभी आपका मोबाइल फॉर्मेट हो जाता है तो वहाँ से आप लोग फ़ोटो अपनी रीस्टोर कर सकते हो। तो ये फ़ोटो मैनेजमेंट के कुछ अलग अलग टूल्स हैं जो यहाँ पर हमको बताए हैं। प्रिंटिंग डिजिटल इमेजेस, अब आप लोगों ने जैसे फ़ोटो खींची कैमरे से, अब आप लोगों को उसको प्रिंट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है वो देखते हैं। तो उसको प्रिंट करना है तो आप लोगों को चाहिए प्रिंटर। अब प्रिंटर भी दो अलग अलग के तरीके के होते हैं, एक होता है पर्सनल फ़ोटो प्रिंटर और एक होता है प्रोफेशनल फ़ोटो प्रिंटर। आप समझ सकते हो प्रोफेशनल फ़ोटो प्रिंटर की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी आएगी और पर्सनल फ़ोटो प्रिंटर की क्वालिटी थोड़ी सी कम आएगी। ठीक है, तो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सनल फोटो प्रिंटर्स, दे कैन बी आइदर ब्लैक एंड वाइट और कलर प्रिंटर्स, है ना। पर्सनल फोटो प्रिंटर्स मतलब जो हम हमारे घरों पे रखते हैं ना, हमारे घर पर हमको इतना हाई क्वालिटी का प्रिंटर थोड़ी ना रखेंगे कि जैसे स्टूडियो में फ़ोटो क्लिक करते हैं जो फोटोग्राफर फ़ोटो बना के देता है, प्रिंट करके देता है, उतनी अच्छी क्वालिटी में आएगी। वो तो अलग टाइप के प्रिंटर्स होते हैं। ठीक है, वो स्पेशल प्रिंटर्स होते हैं जो उन लोगों के लिए बनाए गए हैं। हमारे घर पर तो कैसे होते हैं, इंकजेट प्रिंटर होता है, या तो फिर डॉट मैट्रिक्स होता है, यहाँ पर कहीं लिखा हुआ नहीं है, डॉट मैट्रिक्स होता है। तो हम लोग तो उस तरीके के प्रिंटर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ डाई सब्लिमेशन प्रिंटर्स होते हैं जिनमें कुछ डाई होती है और डाई को यूज़ करके आपको स्क्रीन पर प्रिंट करके देता है। तो ऐसे कुछ अलग अलग टाइप्स के प्रिंटर्स होते हैं जिनका यूज़ करके आप नियर फोटोग्राफिक क्वालिटी मीन्स की पिक्चर तो नहीं पर बहुत अच्छी क्वालिटी की पिक्चर तो प्रिंट कर ही पाएंगे। अगला होता है प्रोफेशनल फ़ोटो प्रिंटर्स। ये होते हैं कुछ ऐसे प्रिंटर्स जो बड़ी बड़ी शॉप्स पे होते हैं, जो फ़ोटो स्टूडियो वाले होते हैं ना, उन लोगों के पास जो प्रिंटर्स होते हैं। इन प्रिंटर्स में जो सबसे पहला खास प्रिंटर होता है उसको बोलते हैं लेज़र प्रिंटर, और एक होता है हाई एंड डाई सब्लिमेशन प्रिंटर, और एक होता है हाई एंड इंकजेट प्रिंटर। ये कुछ ऐसे प्रिंटर्स के नाम हैं जो कि प्रोफेशनल क्वालिटी की, जैसी आपने फ़ोटो खिंचाई है वैसी ही क्वालिटी की आपको फ़ोटो का प्रिंट निकाल कर दे सकता है। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, दिस वाज इट फॉर टुडेज़ क्लास। यहाँ पर इन्होंने सारे डिवाइसेस बता दिए, डिजिटल ऑडियो क्या होता है, डिजिटल वीडियो क्या होता है, वीडियो एडिटिंग क्या होता है, ऑडियो एडिटिंग क्या होता है, फ़ोटो एडिटिंग क्या होता है, सारी चीज़ें हमको यहाँ पर इन्होंने बताई। कुछ ऐसा नहीं था जो आप लोग नहीं जानते, एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी नोन टू यू। एंड एज यू कैन सी इन दिस असेसमेंट, यहाँ पर आप लोगों को ट्रू और फॉल्स बताना है। स्मार्टफोन कैनॉट ऑर्गेनाइज एंड स्टोर इमेज इन्फॉर्मेशन। क्या आपका मोबाइल इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकता? क्या आपका मोबाइल ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता? कर सकता है। तो यहाँ पर ये आंसर क्या है, फॉल्स है। स्मार्टफोन कैन ऑर्गेनाइज, हाँ बिल्कुल सही।
एन एक्सबॉक्स इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन, नहीं, एक्सबॉक्स में सिर्फ हम वीडियोस देख सकते हैं। पीडीआई इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही। कैमकोडर इज़ यूज टू रिकॉर्ड वीडियो, बिल्कुल सही। एक्सबॉक्स इज़ यूज टू रिकॉर्ड वीडियो, नहीं। यू कैन एडिट फोटोग्राफ्स टेकन यूजिंग डिजिटल कैमरा, हाँ बिल्कुल। यू कैनॉट एडिट फोटोज़, बिल्कुल गलत। अ डिजिटल कैमरा स्टोर्स इमेजेस इन इट्स मेमोरी, डिजिटल कैमरा, हाँ ठीक है, स्टोर करता है। अ डिजिटल कैमरा स्टोर्स मेमोरी ऑन फिल्म, नहीं, एनालॉग कैमरा करता है, मतलब ये गलत है। यू कैन प्ले गेम्स ऑनलाइन बाय यूजिंग एन एक्सबॉक्स, नहीं, नहीं, उसमें तो गेम्स ऑनलाइन खेलने का ऑप्शन नहीं होता। कैनॉट प्ले, ट्रू। तो ऐसे बहुत सारे आप लोगों को यहाँ पर फिल इन द मैच द कॉलम्स दिए हुए हैं, ट्रू और फॉल्स दिए हुए हैं, वो आपको सॉल्व करना है। आपकी कॉपीज बुक में ही सॉल्व कर लेना। और फिर से कुछ और ट्रू और फॉल्स दिए हुए हैं, उनको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर सारे ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स ही दिए हुए हैं। और उसके बाद आखिरी में यहाँ पर MCQs दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑडियो स्ट्रीमिंग। It sends the audio files to your video in a continuous stream. It allows you to listen to digital audio without first downloading the entire file. दोनों सही है। It allows you to transfer analog audio files. It needs a browser add-in or streaming audio player to play audio files. तो यहाँ तो मुझे लगता है सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, तो सारे ही आंसर सही हो सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। तो इस तरीके से आपको देखना है, यहाँ पर चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस दिए हुए हैं। अराउंड 5 क्वेश्चंस है, जस्ट सॉल्व इट एंड लेट मी नो इफ़ यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स विद दोस। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इट फॉर टुडेज क्लास। डू सॉल्व द एक्सरसाइज एंड डू लेट मी नो कि इफ़ आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही हैं। इफ़ सो देन वी विल रिजॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। ओके, so thank you students, see you in the next class.